أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه والصلاة والسلام مولانا مولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرضا عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا صلوات محمد وعلى قبل از بیان حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر کرم علی ابن میر سید رضا محبوب النساء بیگم بنت فضل علی مرزا آدم بیگ ابن فضل علی فیضان علی ابن ظفر علی اور میر سید رضا کے کل خانوادے کے مرحومین مرحومات اس کے علاوہ شاہد حسن کامدار ابن اکبر علی اور خاندان کے جتنے بھی مرحومین مرحومات تھے انہیں اور جملہ مومنین و مومنات کے آبائی پاک کو بزرگان محترم آج میرے اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں میں آپ تمام مومنین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی محبتوں سے نوازا اور میری پذیرائی کی اور شکریہ اس لیے ہے پہلے لوگوں کا چونکہ امام کہتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو انسان لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ پروردگار کا شکریہ کیا ہے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں
ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، امام کی حدیث کتاب کا نام وسائل الشیعہ، جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 92، حدیث نمبر 33,297۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا یا امرنا، پروردگار اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندگی عطا کرتا ہے، ہمارے امر کو حیات عطا کرتا ہے۔ سوال ہوا کیفا یحیی امرکم، مولا ذرا طریقہ بھی تو بتائیے، کس طریقے سے آپ کے امر کو حیات دے، کس طریقے سے آپ کے امر کو زندگی عطا کریں۔ امام نے طریقہ بھی بتایا، کہا بڑا آسان طریقہ ہے، یتعلم علومنا ویعلم الناس، ہمارے علوم خود سیکھو اور اسے دوسروں کو سکھاؤ۔ اگر ایسا کر رہے ہو تو ہمارے امر کو زندگی عطا کر رہے ہو، ہمارے امر کو حیات عطا کر رہے ہو۔ مولا ہم ایسا ہی کیوں کریں؟ مولا بتاتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اس لیے کہ جب لوگوں کو ہمارے کلام کا حسن سمجھ میں آئے گا، ہمارے کلام کی خوبصورتی سمجھ میں آئے گی، تو لوگ ہماری اتباع کریں گے، لوگ ہماری پیروی کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا رخ نہیں ہے کہ جسے یا قرآن نے یا اہل بیت اطہار نے تشنا چھوڑا ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، آئیے قرآن کے دروازے پر، آئیے اہل بیت اطہار کے دروازے پر، کلام قرآن میں اور کلام معصومین میں آپ کو آپ کی مشکل کا حل مل جائے گا۔ آئیے قرآن سے سوال کرے، قرآن ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، نفسانی خواہشات ہے، شیطان کا بہکاوا ہے، دنیا کی رنگینیاں ہے، آج کل زمانہ بڑی ترقی پر آ گیا ہے۔ یہ قرآن ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اور آج ہم کیا کریں؟ کیا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے گا؟ کیا پروردگار ہمیں اپنے آپ سے دور کر دے گا؟ کہا خبردار ہم تمہیں بتائیں گے۔ پڑھیے سورہ زمر، قرآن کا 39واں سورہ، آیت نمبر 53، قرآن کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، don't despair of the mercy of Allah، ہرگز ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ پروردگار ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، پروردگار تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے گا معصومین کے کلمات ہیں، خبردار تمہارے گناہ بڑے نہیں ہیں، پروردگار کی رحمت بڑی ہے۔ نہیں، آپ تعقیبات پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، الگ الگ تعقیبات نقل کی گئی، کہا ظہر کی نماز کے بعد یہ تعقیب پڑھو، عصر کی نماز کے بعد یہ تعقیب پڑھو، لیکن مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے ایک تعقیبات مشترکہ کو نقل کیا، کہا اسے ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ان کے جملے پڑھیے اور محظوظ ہوئیے، یہ معصومین کے کلمات ہیں جو ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اللہم انا مغفرتک ارجا من عملی، معبود مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری مغفرت کی امید ہے۔ اللہم انا مغفرتک ارجا من عملی وَإِنَّا رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنبِي، معبود میرے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ پروردگار ہمیں بہت زیادہ چاہتا ہے، پروردگار ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے کہا دیکھو 70 ماؤں کی محبت ایک طرف اور میری محبت ایک طرف، تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تم ہمارے بندے ہو، ہماری رحمت کے سائے میں آ جاؤ، ہم تمہیں دنیا میں بھی کامیاب بنا دیں گے، تمہیں آخرت میں بھی کامیاب بنا دیں گے۔ یقین جانیے ہم اس لفظ کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لفظ کی حقیقت کو ہم درک کر ہی نہیں سکتے کہ پروردگار ہم سے محبت کرتا، پروردگار ہم سے محبت کرتا۔ نہیں میں دلیل دوں گا، یقین جانیے اگر میں آپ سے کہوں کہ حضور والا سنیے گلاب کا پھول جو ہے بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا ہی پیارا ہوتا ہے، یقین جانیے لاکھ میں تعریفیں کرتا رہوں، میں آثار بیان کر سکتا ہوں لیکن حقیقت بیان نہیں کر سکتا۔ نہیں جھولا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں لاکھ تعریفیں بیان کروں، گلاب کے پھول کی تعریفیں کرتا رہوں، میں آثار بتاؤں گا، حقیقت بیان نہیں کر سکتا۔ حقیقت اس پھول کی تبھی کھل کر سامنے آئے گی جب پھول آپ کی خدمت میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے پروردگار ہم سے محبت کرتا ہے
परवरदिगार हमारे इंतजार में है, परवरदिगार हमारा मुंतजिर है। क्या हम बढ़े तो सही, यकीन जानिए हम परवरदिगार की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, परवरदिगार हमें आगे बढ़कर गले लगा देगा। शर्त यह है कि हम आगे बढ़े तो सही, यकीन जानिए परवरदिगार ने हमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं मांगा है। हमारा काम है कोशिश करना। खबरदार अगर गुनाह हो जाए तो अपने आमाल को वही न छोड़ दीजिएगा, क्योंकि परवरदिगार ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है। तौबा कीजिएगा, परवरदिगार की बारगाह में आ जाइएगा। क्या सरी और रिज़ा, ये तो अपने बंदों से बहुत जल्द राजी हो जाता है। मैंने अभी ये जुमला कहा है कि हमें कोशिश करनी है, नतीजा परवरदिगार के हाथ में है। जितना मुमकिन हो परवरदिगार की इताअत करते रहिए, परवरदिगार की इबादत करते रहिए। आप मुलाहिजा फरमाइए कि ये कोशिश क्या है और इसका समरा क्या मिलता है। यकीन जानिए एक छोटा सा बच्चा जो गहवारे में लेटा हो, छोटा सा बच्चा है, आप जब उसके करीब जाइएगा तो क्या वो बच्चा खुद से आपकी आगोश में आ सकता है? खुद से आपकी आगोश में आ सकता है? क्या नहीं? वो छोटा सा बच्चा है, खुद से आपकी आगोश में नहीं आ सकता। तो क्या वो बच्चा क्यों ही खामोश लेटा रहता है? क्या नहीं? जैसे ही आप उस बच्चे के करीब जाते हैं, उस बच्चे पर यह असरदारी होता है, वो आपको देखकर हाथ पैर मारने लगता है, कोशिश करने लगता है। अभी जाने ईमान फरमाइए कोशिश क्या है? नतीजा परवरदिगार के हाथ में है। वो बच्चा कोशिश करने लगता है, पैर हाथ मारने लगता है। इस कोशिश का असर आपकी तबीयत पर क्या होता है? आपकी तबीयत पर क्या होता है? कि हमारी तबीयत पर उस बच्चे की थोड़ी सी कोशिश का असर यह होता है कि वो खुद से हमारी आगोश में नहीं आ सकता, लेकिन उस कोशिश को देखकर हम झुकते हैं, बच्चे को आगोश में उठा लेते हैं। हम झुकते हैं, बच्चे को आगोश में उठा लेते। परवरदिगार भी हमसे यही कह रहा है, हमारी राह में कोशिश करते रहो, हमारे कर्म के हाथ झुकेंगे, तुम्हें आगोश में उठा लेंगे। सलाम पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार हमारा मुंतजिर है। नहीं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से परवरदिगार कह रहा है, कम उतीलुन नजर व उहसिनुल तलब वल कौम ला यरजिऊन। ए ईसा, मैं अपने बंदों का कितना मुंतजिर हूं, मैं इनका इंतजार कर रहा हूं, ये हमारी तरफ आ क्यों नहीं रहे, ये क्यों नहीं आ रहे? यकीन जानिए अगर एक औलाद एक रात घर से बाहर चली जाए, सारी रात वालिदैन को इंतजार रहता है, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। यहाँ तक के वालिदैन दरवाजा खुला रखते हैं, शायद रात के किसी वक्त में हमारी औलाद हमारे घर आ जाए। रिवायत के जुमले हैं, जिस तरीके से एक वालिदैन अपने खोए हुए बच्चे का इंतजार करते हैं, इससे कहीं ज्यादा परवरदिगार अपने बंदों का मुंतजिर है। इससे ज्यादा कहीं परवरदिगार अपने बंदों का मुंतजिर है। जनाब ईसा से कह रहा, ईसा मैं इनका इंतजार कर रहा हूं, ये आते क्यों नहीं? उसके बाद से परवरदिगार कहता है, यकीन जानो ईसा, अगर इन्हें मालूम हो जाए, लो यअलमुल मुदब्बिरून कैफा इश्तियाकी बिहिम, अगर ये जो मुझे पीठ दिखा रहे हैं, मेरी बारगाह से दूर हैं, अगर इन्हें मालूम हो जाए कि मैं इनका कैसा मुंतजिर हूं, लमातू शौकन इलैया, तो यकीन जानो मुझ तक आने के लिए ये अपनी जान दे देंगे, मुझ तक आने के लिए ये अपनी जान दे देंगे। परवरदिगार हमारा मुंतजिर है, इंतजार कर रहा है। परवरदिगार कैसा मुंतजिर है? हमें कोई ऐसा मंदिर भी तो चाहिए जिससे पता चले परवरदिगार कितना इंतजार कर रहा है अपने बंदे का। तारीख गवाह है, रिवायत बताती है कि काफिर इंसान है, वो बाजार गया, गरीबी है, फकीरी है, बहुत अच्छा स्टेटस नहीं है, उसने अपने हैसियत के एतबार से एक मिट्टी का बुत खरीदा, खरीद कर घर ले आया, उसके आगे सजदा कर रहा। चंद दिन गुजर गए, परवरदिगार ने उसे दौलत अता की, उसने अपने बुत का शुक्रिया अदा किया और फिर बाजार गया, उसे वापिस करके पत्थर का बुत खरीद कर ले आए। रिवायत के जुमले हैं कि चंद दिन गुजरे, हालात और बेहतर हो गए। ये पत्थर वाले को बाजार लेकर गया, वापिस किया और सोने का बुत लेकर आ गया, सोने का बुत लेकर आ गया। अब उसके आगे अपने सर को झुका रहा है, इबादत कर रहा है। रिवायत के जुमले हैं कि उसकी एक बेटी और कोई नहीं, बड़ा अच्छा मामला चल रहा है, लेकिन अचानक उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब होती है
تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں ہماری اولاد جتنی جلدی ہو ٹھیک ہو جائے. یہ بھی پریشان ہو گیا, ڈاکٹروں کے پاس طبیبوں کے پاس لے کر جا رہا ہے, سب پریشان ہیں, سب نے کہہ دیا لا علاج, اسے شفا نہیں مل سکتی. اب یہ پریشان ہو کر آ گیا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں, بت کے آگے اس نے سر کو رکھا اور کہتا ہے کیا تمہیں میرا احسان یاد ہے؟ تم مٹی کے تھے, ہم نے تمہیں پتھر کا کر دیا. تم پتھر کے تھے, ہم نے تمہیں سونے میں تبدیل کر دیا. اب ایک ہی گزارش ہے, میری بیٹی کو شفا عطا کر دو, میری بیٹی کو شفا عطا کر دو. یہ نادان ہے بیچارہ مانگ رہا ہے, جبکہ قرآن ان کی کیفیت بتا رہا ہے, ان کے خداؤں کی. ضعف الطالب والمطلوب, یہ مانگنے والا بھی کتنا کمزور ہے, یہ عطا کرنے والا بھی کتنا کمزور ہے کہ اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. ان کے خدا اتنے کمزور ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے قرآن بتا رہا ہے, لیکن اپنے عقیدے کے اعتبار سے سجدہ کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے. جب کافی دن گزر گئے, بیٹی کو شفا نہ ملی, تو ایک مرتبہ چڑھ کر کہتا ہے, جملہ سنیے پروردگار ہمارا کیسا منتظر ہے. چڑھ کر کہتا ہے سنو, کیا تمہیں میرا احسان یاد نہیں آ رہا ہے؟ میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں, تم مٹی کے تھے, ہم نے تمہیں پتھر کا بنا دیا, پتھر کے تھے, ہم نے سونے کا بنا دیا. دیکھو میری بیٹی کو شفا دے دو. اگر شفا نہیں دی تو میں مسلمانوں کے پروردگار کی خدمت میں چلا جاؤں گا اور وہاں دعا کروں گا کہ میری بیٹی کو شفا دے دے, میری بیٹی کو شفا دے دے, تاکہ تمہاری حیثیت دنیا والوں کے سامنے آ جائے, تمہاری بے عزتی ہو جائے, تمہاری بے عزتی ہو جائے. روایت کے جملے ہیں کہ جیسے اس نے یہ جملہ کہا, پروردگار نے فرشتے کو حکم دیا, جا اس کی بیٹی کو شفا دے دے, جا اس کی بیٹی کو شفا دے دے. جیسے ہم متعجب ہیں سن کر, فرشتے کو بھی تعجب ہوا, معمول ابھی اس نے کہا ہے آیا نہیں ہے, اس نے کہا ہے آیا نہیں ہے. پروردگار نے کہا اس کے کہنے کو آنے جیسا شمار کرو, اس کے کہنے کو آنے جیسا شمار کرو. ارے میں 30 سال سے اسی ایک جملے کا انتظار کر رہا تھا. صلوات پڑھے محمد. میں 30 سالوں سے اسی ایک جملے کا انتظار کر رہا تھا, جاؤ اس کی بیٹی کو شفا عطا کر دو. یہ پروردگار ہمارا منتظر ہے. ہم پڑھے تو صحیح پروردگار کی بارگاہ میں, ہم پڑھیں گے پروردگار ہمارا استقبال کرے گا, ہم پڑھے تو صحیح پروردگار ہمارا استقبال کرے گا. اس کی رحمت کی وسعت بہت بڑی ہے, چونکہ ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مخصوص ہے آج کی مجلس, لہذا مجھے وہی آنا ہے. میں نے جملہ کہا, میری 5 مجلس کا موضوع یہی رہا کہ ہمیں غیروں کے دروازے سے اصول حیات نہیں لینا ہے, یا تو قرآن ثابت سے پوچھنا ہے یا تو قرآن ناطق سے پوچھنا ہے. اگر غیروں سے ہم لیں گے تو پھر ہم یہی سمجھیں گے جو ہمیں حسن بصری سمجھائیں گے. حسن بصری نے اپنا نظریہ پیش کیا, صوفیوں کے بزرگ عالم دین امام کے زمانے میں موجود ہیں, انہوں نے نظریہ پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ لیس العجب کل العجب ممن ہلک کیف ہلک, العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب نہیں ہے اور بالکل تعجب نہیں ہے ایسے انسان کے اوپر کہ جو ہلاک ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا, بلکہ مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو اس دنیا میں رہا اور نجات پا کر جنت میں چلا گیا. اچھا نظریہ ہے یا نہیں؟ سب تسلیم کریں گے. پوچھا گیا حضور آپ ایسا نظریہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو تعجب اس پر نہیں ہے کہ جو ہلاک ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا, تعجب آپ کو اس پر ہے کہ جو نجات پا کر جنت میں چلا گیا. تو حسن بصری نے کہا سنو, دنیا کی رنگینیاں ہیں, نفسانی خواہشات ہے, شیطان کا بہکاوا ہے, کوئی بھی ہلاک ہو کے جہنم میں جا سکتا ہے. لہذا تعجب اس پر نہیں کہ جو جہنم میں چلا گیا, بلکہ تعجب اس پر ہے کہ جو جنتی ہو گیا. یہ ہے ایک عام انسان کا نظریہ. اس لیے کہا گیا اصول حیات غیروں کے دروازے سے نہ لیجیے بلکہ معصومین سے لیجیے. اسی نظریے کو ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. مولا حسن بصری کا یہ نظریہ ہے,
आप क्या कहते हैं इस नजरिए के बारे में? इमाम ने कहा मैं इस नजरिए को नहीं मानता, मैं इस नजरिए को नहीं मानता। मौला इतना अच्छा नजरिया है, आप इस नजरिए को नहीं मानते? कहा नहीं। मौला आपका नजरिया क्या है बता दीजिए। इमाम ने कहा लैसल अजब कुल्लुल अजब मिम्मन नजा कैफा नजा। कहा मुझे ताज्जुब नहीं है और बिल्कुल ताज्जुब नहीं है कि जो निजात पा गया और जन्नत में चला गया। अल अजब कुल्लुल अजब मिम्मन हलका कैफा हलका। बल्कि मुझे ताज्जुब है उस इंसान पर और बिल्कुल ताज्जुब है कि जो हलाक हो गया और जहन्नम में चला गया। महसूस किया आपने अभी जाने ईमान, पूरा नजरिया उल्टा हो गया। हसन बसरी क्या कह रहे हैं और इमाम क्या कह रहे हैं? हसन बसरी कह रहे हैं मुझे ताज्जुब उस पर नहीं कि जो हलाक हो गया और जहन्नम में चला गया, बल्कि ताज्जुब उस पर है जो निजात पा गया और जन्नत में चला गया। और इमाम क्या कह रहे हैं? इमाम कह रहे मुझे ताज्जुब उस पर नहीं कि जो निजात पा गया और जन्नत में चला गया, बल्कि ताज्जुब उस पर है कि जो हलाक हो गया और जहन्नम में चला गया। कहा गया मौला नफ्सानी ख्वाहिशात है, शैतान का बहकावा है, दुनिया की रंगीनियां है, ऐसे में कोई भी जहन्नम में जा सकता है। इमाम ने मुस्कुरा के कहा महा सादे रहमतिल्लाह, अरे अल्लाह की रहमत के होते हुए कौन ऐसा बदबख्त इंसान है जो जहन्नम में चला जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद देखा निजानी ईमान पूरा नजरिया ही उलट गया। कहा ये कौन ऐसा बदबख्त इंसान है कि रहमते परवरदिगार के होते हुए जहन्नम में चला गया। नहीं निजानी ईमान, परवरदिगार की रहमत का अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते। परवरदिगार हमें कितना चाहता है, हमसे कितनी मोहब्बत करता है परवरदिगार। यकीन जानिए परवरदिगार ने इस बात का मुशाहिदा कराने के लिए कुछ मजहरे सिफात बनाए। कहा देखो इन्हें देखते जाना और मुझे पहचानते जाना। मैं मसाइल में नहीं आया हूं, लेकिन मसाइल के रुख से फदाइल का जुमला अर्ज करना चाहता हूं। रवायत के जुमले हैं हुसैन इब्ने अली जख्मी हालत में जमीन पर है, शिमरे पर सीने पर सवार है, एक हाथ में रीशे मुबारक, एक हाथ में खंजर, और मौला हुसैन कहते हैं ए शिमर मुझे पानी पिला दे, ए शिमर मुझे पानी पिला दे। इंसान से बताइए क्या हुसैन को नहीं मालूम जो कत्ल करने के तरफ है वो हुसैन को पानी देगा? मौला आप पानी क्यों मांग रहे हैं? आप शिमर से पानी क्यों तलब कर रहे हैं? मौला वो आपको कत्ल करने जा रहा है, आप है कि पानी मांग रहे हैं। यही सवाल जनाब आगाई दरिशमंदान ने अपने उस्ताद से पूछा कि मैंने ये रिवायत पढ़ी तो इस रिवायत का राज समझ में नहीं आया। क्या हुसैन को नहीं मालूम कि जो कत्ल करने के दर पर है मैं उससे पानी मांग रहा हूं, वो मुझे पानी देगा? उसके बावजूद हुसैन पानी क्यों मांग रहे हैं? जुमला सुनिए, उनके उस्ताद ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा मेरा एक सवाल है, उसका जवाब बताओ, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ये बताओ अगर कोई किसी इंसान को प्यासा कत्ल करे तो ज्यादा गुनहगार है या पानी पिलाकर कत्ल करे तब ज्यादा गुनहगार है? जुमला महसूस कीजिएगा। इन्होंने जवाब दिया कि हुजूर पानी पिलाकर अगर कत्ल करेगा तो उसका गुनाह कम होगा। गुनाह तो है लेकिन वो गुनाह कम हो जाएगा कि जो प्यासा कत्ल करने का है। कहा हुसैन इब्ने अली ने पानी का मुतालबा इसीलिए किया कि हुसैन का करम है, दुनिया वालों को दिखाना चाहते ए शिमर मुझे पानी पिलाकर कत्ल कर ताकि तेरे गुनाह में कुछ तखफीफ हो जाए। सलाम पढ़े मोहम्मद ये हुसैन इब्ने अली का करम है। उरीदो हयातहु व युरीदो कत्ली। जितने भी मासूमीन आए हैं इनका मकसद ही यही रहा कि मैं अपने दुश्मन को हयात दूं जबकि वो उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। सबने यही चाहा है कि मेरा दुश्मन भी है तो उसे हयात मिल जाए। कहा इनके आईने और किरदार में देखना, जब ये इतने करीब है तो तुम्हारा परवरदिगार कितना करीब है।
परवरदिगार चाहता ही नहीं कि इसके बंदे रुसवा हो जाए, इसके बंदे जलील हो जाए। परवरदिगार ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। परवरदिगार ने अपने बंदों की बड़ी इज्जत की है। इसलिए परवरदिगार ने रहमत के 100 जुज बनाए, एक जुज सारी कायनात में तकसीम किया, 99 जुज परवरदिगार ने रहमत का अपनी जात से मखसूस कर लिया। कहा रोज़े क़यामत इसी के जरिए से अपने बंदों का हिसाब किताब करूंगा, इसी के जरिए से हिसाब किताब करूंगा। परवरदिगार हमें बहुत चाहता है, चाहता ही नहीं कि हम किसी के आगे जलील हो जाए। आओ हमसे मुतालबा करो, हम तुम्हें अता करेंगे। अज़ीज़ान ईमान, ये तो खुदा है, हम बंदों को देखते चले जाए, पता चलेगा परवरदिगार कैसा है। आप पढ़िए तारीख, किताब का नाम है गंजीने मारिफ। साहिब किताब इसी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या हुआ, इनके भाइयों ने इन्हें कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल दिया। कैसी कैसी परेशानियां, लेकिन सारी परेशानियों के बाद जब आए यूसुफ की बारगाह में, माफी मांगी, यूसुफ ने माफ कर दिया, गले से लगा लिया। और पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, साहिब किताब तहरीर फरमाते हैं माफी तराफी के बाद यूसुफ के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 40 साल तक रहे। कितने साल तक? 40 साल तक इन्होंने जिंदगी गुजारी। और यूसुफ ने इन 40 सालों में ये एहतियात बरती कि एक मर्तबा भी अपनी जबान पर लफ्ज़े कुआं नहीं लाए, अपनी जबान पर लफ्ज़े कुआं नहीं लाए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर मैं लफ्ज़े कुआं लाऊंगा मेरे भाइयों को अपनी रद्दी याद आ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि उससे वो शर्मिंदगी में मुब्तला हो जाए। यूसुफ ने 40 साल तक लफ्ज़े कुआं अपनी जबान पर इस्तेमाल नहीं किया कि मेरे बंदे शर्मिंदा ना हो। अरे अब तो पहचानो, जब बंदा ऐसा है तो खुदा कैसा होगा। सलात पढ़े मोहम्मद वाल। अज़ीज़ान ईमान, परवरदिगार हमसे मोहब्बत करता है। अहले बैत अत्हार ने हमें समझाया, अहले बैत अत्हार ने हमें बताया। बस शर्त इतनी है कि हर हाल में हमें परवरदिगार की इताअत करनी। ये नहीं कि जब तक परवरदिगार अता कर रहा है परवरदिगार की इबादत करते रहे, परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते रहे। नहीं, हकीकी बंदा वो है कि जो आसानियों में भी परवरदिगार को याद करे, परेशानियों में भी परवरदिगार को याद करे। नहीं, दिन ऐश के रहते हैं तो सब रहते हैं काफिल, पड़ जाता है जब वक्त तो आता है खुदा याद। नहीं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार के खिलाफ है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, दावा बगैर दलील का अली का चाहने वाला नहीं करता। अली के चाहने वाले इंटेलेक्चुअल होते हैं, दावा बगैर दलील के नहीं करते। आप किताब उठाकर पढ़िए, किताब का नाम है मास्टरपीस ऑफ क्रिएशन, शाहकार आफरीनिश। मौला हुसैन ने जगह जगह खुतबा दिया है। मदीने से निकलते वक्त खुतबा दे रहे हैं, मक्के में खुतबा दे रहे हैं, करबला पहुंचने के बाद खुतबा दे रहे हैं, यहां तक कि शब आशूर मौला ने खुतबा दिया। साहिब किताब इसी किताब में हमारे तीसरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन खुतबों के कलिमात को नकल करते हैं कि इमाम ने खुतबा देते वक्त कहा, उस्नी अल्लाह अहसन सना। हुसैन अपने परवरदिगार की सना करता है, तारीफ करता है, और ऐसी तारीफ कि जो कि उसका हक है। वह अहमदहु अला सर्राए वस्सर्रा, और हुसैन अपने परवरदिगार की हम्द करता है आसानियों में भी परेशानियों में भी। देखिए मौला बता रहे हैं हुसैन का चाहने वाला वो है कि जो आसानियों में भी परवरदिगार को याद रखे और परेशानियों में भी परवरदिगार को याद रखे। उसके बाद के जुमले पढ़े, मौला हुसैन जो इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका अला अन अकरमतना बिन नबुव्वा। माबूद, ये हुसैन तेरी हम्द करता है कि तूने मुझे नबूवत के जरिए से मोहतरम बनाया। मौला, ये शब आशूरा आप नबूवत का तज़किरा क्यों कर रहे हैं? कल आपको कुर्बान हो जाना है, आप ये क्यों बता रहे हैं लोगों को कि परवरदिगार ने हमें नबूवत के जरिए से मोहतरम बनाया है? ये बात है। और पीछे को भी देखिए, दरबार यजीद में खड़े हुए हैं, खुतबा दे रहे हैं हमारे चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। देखिए मिलजुल कर सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का।
باقی رہے گا ہے ہی نہیں. میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ محمد والے محمد کسی کا بھی اجر نہیں رکھتے. اگر آپ نے ان کے حق میں تھوڑی سی زبان بھی ہلائی تو وہ آپ کو 10 گنا 100 گنا 1000 گنا آپ کو اجر عنایت کر دیتے ہیں. نہیں حدیث ہے, حدیث پڑھو. سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ 10 مرہ, جو مجھ پر 1 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے. اگر حدیث یہی تمام ہو جاتی میں آگے نہ پڑھتا. آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ 10 مرہ صلی اللہ علیہ 100 مرہ, جو مجھ پر 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے پروردگار اس پر 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے. حدیث مکمل ہو جائے تو من کا صلوات چاہوں گا. نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ 100 مرہ صلی اللہ علیہ 1000 مرہ, کا جو مجھ پر 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے پروردگار اس پر 1000 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے. اس کے بعد سے نبی نے ارشاد فرمایا جس پر پروردگار 1000 مرتبہ صلوات پڑھ دے وہ بدبخت ہے کہ جہنم میں داخل ہو جائے. صلوات پڑھے محمد. چیز ہے جس کے خون میں طہارت ہوتی ہے وہی علی کا ذکر کرتا ہے, جس کے خون میں پاکیزگی ہوتی ہے وہی علی کا نام لیتا ہے. عزیزان ایمان, کمال یہ ہے کہ جب بھی علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سب مسکرانے لگتے ہیں, سب خوش ہونے لگتے ہیں. دل تو یہی کہتا ہے, سلمان مسکرا کے کہتے ہوں گے میرے مولا کا نعرہ لگ رہا ہے, ابوذر کہتے ہوں گے میرے آقا کا نعرہ لگ رہا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے کہ میرے سربراش کا نعرہ لگ رہا ہے. اور جب سب کہہ کر تھک کر چپ ہو جاتے ہیں تو عجب نہیں قدرت جھوم کر کہتی ہو میری مرضی کے خریدار کا نعرہ لگ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وال. یہ ہے باپ اور یہ ہے بیٹا دربار عظیم میں کھڑے ہو کر چوتھے امام خطبہ دے رہے ہیں. یزید تیری حیثیت کیا ہے پہچان میں تجھے بتا رہا ہوں. اوتینا بشدہ وفضلنا بصبر, پروردگار نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور 7 چیزوں کے ذریعے سے پروردگار نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے. مولا بتائیے وہ 6 چیزیں آپ کو کیا ملی ہے؟ مولا کہتے ہیں اوتینا العلم والحلم والسماحہ والشجاعہ والفصاحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا, اللہ نے ہمیں علم عطا کیا, اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی, اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی, اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی, اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی. والمحبہ فی قلوب المؤمنین. مولا کہتے اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے. جانے قربان ہو جائے تلواروں کے زور سے دلوں کا جھکانا اور ہے, اور جس کی محبت پروردگار دل میں ڈال دے اس کے لیے سر خود بخود جھک جائے, اس کا مرحلہ اور ہے. امام یہی بتا رہے ہیں دیکھو پروردگار نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے. اس کے بعد سے مولا ارشاد فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا بِالصَّبْرِ. اللہ نے 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فضیلت عطا کی. وہاں امام شب عاشور تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نبوت کے ذریعے سے محترم بنایا. یا امام پہلی چیز جو اپنی فضیلت کی بتاتے ہیں مولا کہتے ہیں یزید سن
मिन्ना नबी अल मुख्तार मुहम्मदा, सुन मेरे में ही से जो नबी थे वो मोहम्मद थे, वो हम में से थे। अजीज़ान ईमान, वहां हुसैन ऐलान कर रहे हैं करबला के मैदान में, क्या चौथे इमाम दरबार यजीद में ऐलान कर रहे हैं, आखिर राज क्या है? मौला आप नबूवत का तज़किरा क्यों कर रहे हैं कि नबूवत हमारे खानदान में, नबूवत हमारे खानदान में? अगर नहीं मौला बताना चाहते हो कि यजीद तारीख के कलम फरोख्ता मौलिकों से सब कुछ तो लिखवा सकता है, लेकिन ये नहीं लिखवा सकता नबूवत मेरे खानदान में। नबूवत हमारे खानदान में। मौला भी यही कह रहे हैं तीसरे इमाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका अला अन अकरमतना बिन नबुव्वा। मामूल हुसैन तेरी हम्द करता है कि तूने हमें नबूवत के जरिए से मुहतरम बनाया। व अल्लमतनल कुरान, और यही नहीं हमें कुरान की तालीम दी। कुरान की आयतें तश्ना रह जाती, वाकईन कुरान थ्योरी है, अहले बैत प्रैक्टिकल है, कुरान मसले बताता है, अहले बैत उसे अंजाम करके दिखाते हैं। अल्लमतनल कुरान, कुरान कर रहा है, कह रहा अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है परवरदिगार जिसने कुरान की तालीम दी। पता ही नहीं चलता परवरदिगार ने कुरान की तालीम किसे दी। हुसैन इब्न अली बता रहे हैं अल्लमतनल कुरान, हम वो है जिसे अल्लाह ने कुरान की तालीम दी। मौला आपको कुरान की तालीम दी है और लोगों के पास भी कुरान की तालीम मौजूद है, तो दोनों में फर्क क्या है? या हाफिज़ाने कुरान भी मौजूद है और आपके पास भी कुरान है? क्या नहीं, दोनों में फर्क है। क्या जिनके पास कुरान की तालीम है, जिन्होंने दुनिया में हासिल किया है, ये उसी वक्त तक कुरान की तिलावत कर सकते हैं जब तक सर उनके बदन में सलामत रहे। लेकिन जिसे परवरदिगार कुरान की तालीम दे, वो नोके नेज़ा पर भी जाने के बाद कुरान की तिलावत करके बताता है हम वो है जिन्हें अल्लाह ने कुरान की तालीम दी है। नहीं, मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। फलसफे में एक इस्तिलाह बोली जाती है कि कोई भी शय हो फलसफे में उसके चार वजूद होते हैं, कतबी वजूद, लफ्जी वजूद, ज़हनी वजूद और हकीकी वजूद। ये चार वजूद होते हैं। मसलन मैं मौलाना सैयद हैदर अब्बास, मेरा कतबी वजूद है, कहीं मेरा नाम लिख दिया जाए तो वहां पे कहा जाएगा ये कतबी वजूद है मेरा। कोई उसे देखे और पढ़े तो ये मेरा लफ्जी वजूद हो जाएगा, उसकी जबान पर आ गया। किसी ने पढ़ा, उसने मुझे देख रखा था, जैसे ही उसने पढ़ा उसके जहन में मेरी तस्वीर आ गई, ये मेरा ज़हनी वजूद हो गया। लेकिन यकीन जानिए ये तीनों वजूद आ जाए, आप यहाँ पर तीनों वजूद बयान कर दें और मजलिस का ऐलान करते रहे, क्या मजलिस मुकम्मल हो जाएगी? क्या नहीं, जब तक कि मेरा हकीकी वजूद ना आ जाए, मैं सरापा मिंबर पर आ न जाऊं, मजलिस को खिताब न करूं, तब तक बात मुकम्मल नहीं होगी। ये चौथा जो हकीकी वजूद है ये सबसे अहम होता है। अज़ीज़ान ईमान, जब फलसफे में हर चीज के चार वजूद हैं तो यकीन जानिए कुरान के भी तो चार वजूद होंगे, कुरान के भी तो चार वजूद होंगे, कतबी वजूद, लफ्जी वजूद, ज़हनी वजूद और हकीकी वजूद। यकीन जानिए ये जो दो दफ्तियों के दरमियान लिखा हुआ कुरान है, किसी भी राइटिंग में ये क्या है? ये कुरान का कतबी वजूद है। कोई भी कारी कुरान इसे तिलावत करता है, उसकी जुबान पर ये अल्फाज आते हैं, ये कुरान का लफ्जी वजूद बन जाता है। क्या हाफिज़ाने कुरान ने इन्हीं अल्फाज को हिफ्ज़ कर दिया, ये इनके जहन में आ गया, ये कुरान का ज़हनी वजूद हो गया। मेरा दुनिया से सवाल है, मुसलमानों से सवाल है, ए मुसलमानों बताओ कुरान का हकीकी वजूद कहाँ है? कुरान का हकीकी वजूद कहाँ है? कतबी वजूद है, लफ्जी वजूद है, ज़हनी वजूद है, हकीकी वजूद कहाँ है? हुसैन इब्न अली ने नोके नैना से तिलावत करके बताया, देखो हम कुरान का हकीकी वजूद।
समातों के हवाले कर रहा हूँ। मौलाना फरमाइए, हुसैन इब्न अली ने लोग के नेज़ा पर तिलावत करके बताया, देखो हम कुरान का हकीकी वजूद है, हमारे सीनों में कुरान मौजूद है, अगर सरदन से जुदा हो जाए तब भी हम तिलावत करते हैं। मौला आप कुरान की तिलावत क्यों कर रहे हैं? सरदन से जुदा हो गया, लोग के नेज़ा पर तिलावत क्यों कर रहे हैं? अजब नहीं, हुसैन इब्न अली मुस्कुरा कर जवाब दे, नादान तारीख पर लिखने वालों ने लिखा कि माज़अल्लाह नबी हिज़यान बक रहे थे, नबी हिज़यान बक रहे थे। मेरे नाना के दिमाग के ऊपर हिज़यान का इल्जाम लगाया गया। आज नवासा लोग के नेज़ा पर कुरान की तिलावत करके उन्हें जवाब दे रहा है। अरे जब शहादत नवासे के दिमाग पर असर नहीं करती तो हल्का सा बुखार नाना के दिमाग पर क्या असर करेगा? जब शहादत नवासे के दिमाग पर असर नहीं करती तो हल्का सा बुखार नाना के दिमाग पर क्या असर करेगा? कि हुसैन इब्न अली का कायनात के कलम फरोख्ता मुअर्रिखों को जवाब है। बस अज़ीज़ान ईमान, मैंने गुफ्तगू तमाम कर दी। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, इनके किरदार को हम देखते जाएंगे, इन्हें पढ़ते जाएंगे, हम परवरदिगार से नजदीक होते जाएंगे। हुसैन इब्न अली ने कुर्बानी इसीलिए दी कि हम अल्लाह से नजदीक हो जाए, अल्लाह से करीब हो जाए। आप ज़ियारत पढ़ते हैं, क्या कहते? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्ला के बाबा आप पर हमारा सलाम। ये अलग बात है कि जनाब अली असगर का नाम अब्दुल्ला था, लिहाजा इस हैसियत से इन्हें अब्दुल्ला कहा गया कि अब्दुल्ला के बाबा हैं। ये एक वजह है, लेकिन असल वजह जो उलमा ने बयान की है का अबा अब्दुल्ला का मतलब ये है पेदरे उबूदियत। हुसैन पेदरे अबूदियत का नाम है, हुसैन पेदरे अबूदियत का नाम है। हुसैन चाहते ही यही है कि सारी कायनात अल्लाह की बंदा बन जाए, सबके सब परवरदिगार के बंदे जाए। देखो मैं पेदरे अबूदियत हूँ, मैं भी चाहता हूँ तुम भी अल्लाह के बंदे बन जाओ, तुम भी अल्लाह के बंदे बन जाओ, तुम भी अल्लाह के बंदे बन जाओ। इसलिए हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में अपनी जान कुर्बान कर दी। नारा के दिन घबराना नहीं, अगर सब कुछ कुर्बान करना पड़ जाए हुसैन कुर्बान कर दे, लेकिन तेरा तहफ्फुज़ जरूरी है। आसोगवारों, आज शब 25 मुहर्रम है। आज की तारीख हमारे चौथे इमाम से मखसूस है। बाप ने भी कलमे हक को बयान किया, बेटे ने भी कलमे हक को दूसरों के दरबार में बबांगे दोहर बयान किया। सुनो, जो हक पर होते हैं वो डरते नहीं, वो जान तो दे देते हैं लेकिन कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाते। सैयद सज्जाद की मुसीबत का तस्करा मैं कहां से शुरू करूं? दिल चाहता है कि उसकी ज़बानी सैयद सज्जाद की मुसीबत बयान करूं जो खून के आंसू रो रहा। हमारा आखिरी इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता है, सलाम हो मेरा उस पर कि जिसके गोश्त को उसकी जंजीरें खाती हैं। अल्लाहु अकबर। हमारा आखिरी इमाम सलाम कर रहा है। सैयद सज्जाद की मुसीबतें बयान करो, मुसीबतें बशुमार कीजिए और अंदाजा लगाइए कितना करीब है हमारा इमाम। मैं मसाइल में खुदाई नहीं करूंगा, आप पुरसा पेश कीजिए बीमार करबला। दिल तो यही कहता है मोहम्मद बाकर यही कहीं होंगे, इंतजार में होंगे कि हमारे चाहने वाले मेरे बाबा का पुरसा हमें पेश करें। इसलिए कि सैयद सज्जाद जिसे अपने बाबा को रोने नहीं दिया गया। सैयद सज्जाद की पहली मुसीबत, बेटा उठो बाबा रुखसत आखिर के लिए आया। सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, क्या देखा? बाबा खाको खून में लगता है।
ये सैयद सज्जाद की पहली मुसीबत, बाबा रुखसत हो रहा है। दूसरी मुसीबत, कुछ ही लम्हा गुजरा है, जनाब ज़ैनब घबराई हुई सैयद सज्जाद के खेमे में आई। बेटा देखो क्या कयामत आ गई है, ज़मीन करबला पे ज़लज़ला क्यों आ रहा है, फरात का पानी नेज़े क्यों चल रहा है, तुम भी अम्मा जरा खेमे का पर्दा हटाइए। अल्लाह अल्लाह, खुदा कोई किसी भी बेटे को मंजर न दिखाए जो सैयद सज्जाद ने देखा। क्या देखा, बाबा का सर नोके नेज़ा पे बुलंद है। सैयद सज्जाद ने सलाम किया, ए भूपी अम्मा आप बिन भाई के हो गए, हम यतीम हो गए। ये सैयद सज्जाद की मुसीबत। और आगे बढ़िए, अभी कुछ ही लम्हा गुजरा है, यही भूपी घबराई हुई सैयद सज्जाद की खिदमत में आ रही है। बेटा खेमों में आग लगा दी गई है, ये बताओ जान बचाना जरूरी है या किसी खेमे में हम जलकर खाक हो जाए, क्या बेपर्दा खेमे से बाहर निकल आए। सोचिए सैयद सज्जाद के दिल पर क्या गुजरी हो। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद की मुसीबतों का आप अंदाजा लगाते जाइए, दिल भर जाएगा। हाय सैयद सज्जाद, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में तारदार तोखे, गंजे शहीदा से गुजारा जा रहा है, गंजे शहीदा से गुजारा जा रहा है। चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। बेटा है, बाप का लाशा पड़ा हुआ है, कैसे बर्दाश्त हो। ज़ैनब ने पूछा, बेटा क्या इस आलम गुर्बत में तुम भी साथ छोड़ जाओगे। सैयद सज्जाद ने तड़प के यही तो कहा, भूपी अम्मा जरा इंसाफ तो कीजिए, जिसके बाबा का लाशा पे गुस्लो कफन पड़ा हो, जवान बेटा मौजूद, लेकिन हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में तारदार तोखे। अल्लाह अल्लाह, सैयद सज्जाद की मुसीबतें मौलाना फरमाइए। हाय सैयद सज्जाद की मुसीबत, कैद खाने शाम है, एक बहन है और भाई है। एक बहन का सवाल है, सैयद सज्जाद की शर्मिंदगी है। एक बहन का सवाल है, सैयद सज्जाद की शर्मिंदगी है। बहन तो ज़ारा पूछती है, ए भैया ये बताइए, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। हाय हमारा चौथा इमाम जवाब देता था, बहन सकीना ये अपने अपने हसियाने जा रहे हैं। सकीना पूछती थी, भैया हमें वतन जाना कब नसीब हो। हाय सैयद सज्जाद, अगर नहीं सैयद सज्जाद सर को झुका लेते हो। बहन निगाहे इमामत देख रही है, सब मदीने जाएंगे, लेकिन तुम कैद खाने शाम में सो जाओ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा, खुदा तुमको तक नसीब न करे सिवाय तुम्हें सैयद शोहदा के। हाँ सो गवारो, सैयद सज्जाद है, सैयद सज्जाद की मुसीबतें हैं। इसका बाबा इसकी आंखों के सामने बेगुस्ल कफन, उसके बाबा का लाशा पड़ा रहा। सैयद सज्जाद न गुस्ल दे सके, न कफन पहना सके। उसके बाद कर दिए है, हाय मेरा बाबा 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद हो गया। 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद हो गया। जब भी मदीने में निकले, कसाब की दुकान से गुजर हुआ। दस्तूर यही था, जब भी कसाब देखते थे इमाम आ रहे हैं, अपनी दुकानों पे पर्दा डाल देते थे। लेकिन अगर कभी इमाम आ गए तो इमाम सवाल करते थे, ए भाई इतना बता, इस जानवर को सिर करने से पहले इसे सैराब किया था या प्यासा सिर कर दिया। हाथों को जोड़कर कहता था, मौला जब तक ये सैराब नहीं हुआ हमने इसे सिर नहीं किया। हाय सैयद सज्जाद की मुसीबत, सैयद सज्जाद करबला का रुख करते थे। हाय मेरा बाबा, यहाँ जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा शरीर। 40 साल तक हमारा इमाम अपने बाबा पे अश्क बहाता रहा, क्रिया करता रहा, रोता रहा, रोता रहा। जब भी पानी आया, हाय मेरा बाबा प्यासा शहीद हो गया। जब भी खाना आया, हाय मेरा प्यासा बाबा भूखा शहीद हो गया। चाहने वाले ने यही तो कहा, मौला कब तक रोइएगा, कब तक क्रिया कीजिएगा। शहादत तो आपके घर की मीरास है, हमारा चौथा इमाम तो हो गया। मिलहार तुमने इंसाफ नहीं किया, शहादत हमारे घर की मीरास है। क्या माँ बहनों का बेटा शाम के बाजारों में जाना, क्या ये भी हमारी मीरास। मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी। सैयद सज्जाद ने तलब के कहा, अश्शाम अश्शाम अश्शाम।